जब कई बारी परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा देगा तो आपका नेचुरल मनुष्य हंसेगा, बोले प्रभु ये तो नहीं हो सकता। When many times God will give you a promise, your natural man will laugh, saying, God, this cannot happen. ओके, अगर मैंने प्रतिज्ञा करी है But he says, if I have promised, तो पूरा भी मैं ही करूंगा। then I am the one who will fulfill it. तेरा काम है मेरी प्रतिज्ञा पे खड़ा हो जा। Your work is to stand on सामर्थ my मेरी, promise. प्रतिज्ञा मेरी। My power and my promise. You just stand on my word. तुम मेरे वचन पे खड़े रहो। Stand on my word. मेरे वचन पे खड़े रहो। एक प्रतिज्ञा One promise ने अब्राहम को बदल दिया, पूरे वंश को बदल दिया। transformed the entire lineage of Abraham. आज दिक्कत यह है कि हम ना उसकी बहुमूल्यता नहीं समझते जो प्रतिज्ञाएं हैं। The problem today is we don't understand how precious these promises It has are. become a cliche. ये कहावत बन के रह गए हैं। हाँ हाँ ठीक है बहुत बारी सुना है हमने। Yeah, I've heard many times. Yeah. हाँ हाँ यीशु के कोड़े खाने समझेंगे, Yeah, सुना we heal है। the steps of Jesus. Yeah. हम नहीं समझते We don't understand इस प्रतिज्ञा के अंदर क्या है। what is hidden in these promises. उसके अंदर जीवन है, There's life in these उसके अंदर promises. चंगाई है। There's healing in these हमें promises. बस खड़ा हो जाना है। We just have to stand on it. अगर उसने दाम चुका दिया If he paid the price, तो मुझे दाम चुकाने की जरूरत नहीं then है। I don't have to pay the price. अगर उसने दाम चुका दिया If he तो paid the आपको price, दाम चुकाने की जरूरत Then नहीं। you don't have to pay the price. परमेश्वर कह रहा है कौन हमारी रिपोर्ट पर भरोसा करता है। God asked this question, who believes in our report? And to whom has the arm of the Lord being revealed? और किस पर परमेश्वर का भुज बल प्रकट हुआ है? अगर आपकी एक नेगेटिव रिपोर्ट है If you have a negative report, उसको बगल में रखो, keep it aside. परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं को निकालो, इसको रखो। Take out the promises of God and keep them अब inside. बोलो परमेश्वर And say, God, मैं तेरी रिपोर्ट को, I will इस believe. रिपोर्ट के ऊपर भरोसा करता हूँ। I will believe in your report above this report. तेरा वचन कहता है Your word says, तूने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले वचन का एक बिंदु भी न टलेगा। you said heaven and earth will pass, but not even a dot of my word will pass. मैं एक परमेश्वर के दास से उनकी गवाही सुन रहा था। वो इतने गरीब थे कि जब ऑफरिंग का टाइम आया तो उन्होंने अपने शर्ट का एक बटन तोड़ के डाल दिया कि कुछ नहीं था डालने के लिए। I was hearing the testimony of a man of God. He was so poor that in the offering time he had nothing to give, so he broke a button of shirt into कोई it. बटन मत डालना, आज प्रेशर नहीं है। Don't put your buttons. There's no pressure. गवाही बता रहा हूँ मैं आपको। I'm just sharing a testimony. उन्होंने बटन डाल दिया He put the button. because he had nothing. But then he उनके पास कुछ found नहीं a scripture. भाग भाग कर अपनी वाइफ के पास आए बस उनको वचन मिल और अपनी गया. वाइफ को बोला मुझे परमेश्वर का वचन मिला। He came running to his इसमें wife. लिखा है जैसे तुम आत्मिक उन्नति करते हो वैसे ही परमेश्वर का वचन कह रहा है जीवन के हर क्षेत्र में तुम उन्नति करो और तुम भले चंगे रहो। He came to his wife and he said, I have found this the word of God, and the word says, as your spirit, as your soul grows, every area of your life will grow and prosper. You'll prosper and be in health. और अच्छे स्वास्थ्य में रहो. खड़े हो गए। He's और still आज he's a great blessing. वो एक बड़ी आशीष है आज. You are one promise away आप- from your breakthrough. अपने छुटकारे से एक वायदा दूर हो आपस. So don't look for feelings. भावनाएं महसूस करने के पीछे मत Look जाओ. for the promise that's in God's word. वो वायदा ढूंढ निकालो जो परमेश्वर के वचन में है. अपने पड़ोसी को बोलो फीलिंग्स नहीं, Tell your neighbor, प्रतिज्ञाएं ढूंढो। don't look for feelings, look for the promise. बोल ही देता हूं मैं। Let me say it. कुछ मसीह लोग इतनी मेहनत करते हैं, Some believers, कोई मिनिस्ट्री नहीं छोड़ी उन्होंने इंडिया की। they do so much hard work, they have not spared one ministry हमारे of लिए India. प्रार्थना करो, हमारा Pray for us, pray for us. ये मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री 50 मिनिस्ट्री में मैसेज डाल देंगे। They have sent messages to 50 ministries. हाँ, उतनी मेहनत अगर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ढूंढते, उस पर मनन करते तो जीवन बदल जाता। If you spend that much effort in looking for God's बहुत promises, एफर्ट लगता है, इतना एफर्ट लगता है 10-50 जगह मैसेज भेजते हैं, हर जगह मैसेज भेजते to हैं, send a message to 50 उससे ministries, ज्यादा एफर्ट लगता है। to go to different places and get hands laid on yourself. और स्वरदूत ऊपर करें, And the angel will be like, read your word. थोड़ा वचन पे आदर दे दे थोड़ा। Give some honor to the word. Amen. I'm not saying lay hand is wrong. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाथ रख के प्रार्थना It is किया not your daily bread. पर वो आपकी रोज की रोटी नहीं हो सकती. वचन आपके रोज की रोटी है। The word is your daily bread. It's your daily bread. कितने लोग आते हैं कहते हैं आप हमारे लिए प्रार्थना करो, मैं कहता हूँ क्या प्रार्थना करूं, हम आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ प्रार्थना से नहीं होता। Many people come and say, I pray for our spiritual growth. I said, it doesn't happen by prayer. You cannot go to somebody, they cannot impart you spiritual growth. Spiritual growth is a process of abiding in God's word, obeying His word, becoming faithful to His word. It's a process. It cannot be imparted. वो ऐसा कहना है कि आप किसी के पास जाओ, बोलो पास्टर जी मेरा बेटा 10 साल का है, इसमें हाथ रख दो कि 25 साल का हो जाए। Spiritual growth
cannot be imparted. वो एक process, एक प्रक्रिया, जब आप वचन में बने रहते हो, वचन के साथ विश्वास योग्य रहते हो, आप बढ़ते जाते हो. It's like going to someone and saying, my son is 10 years old, pray that he becomes 25 right now. Hear this. Yes, gifts can be imparted. वरदान दिए जा सकते हैं. हाथ But you can gift a nice car to a fool and he will destroy his life. लेकिन आप एक मूर्ख को अच्छी गाड़ी दो और वो अपना जीवन नाश कर सकता है उससे. किसी को मिल गया चंगाई का वरदान, वो बाहर गया, उसने 2 लोगों पे हाथ आया, उसके अंदर हम आ गया, मैं कुछ हूँ, और बिल्कुल गड्ढे में चला गया फिर. Somebody got a तो gift क्या of- फायदा उस गिफ्ट का? Someone got a gift of healing. Gifts are powerful, but it's spiritual maturity. We have to grow every day, mature in the word of God. वरदान ताकतवर है, लेकिन हमें मैच्योर होना है, परमेश्वर के वचन में मैच्योर होना है. हाँ, मुफ्त में उसने इतनी महान बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दे दी हैं आपको. He has given you such great, exceedingly great and precious promises for free. इस पे खड़े हो जाओ ना. Stand on them. Amen. कई लोग बस में खड़े होके, मेट्रो में खड़े होके जब जा सकते हैं मीलों दूर, Some तो people घर पे can, वचन पे भी खड़े हो जाओ. some people can stand and travel for miles to get somewhere. Stand on the word in your house. आप जानते हैं मैं बैंगलोर गया, वहां पे कॉन्फ्रेंस थी. I went to Bangalore for a conference. परमेश्वर के दास आए थे, बहुत पावरफुल कॉन्फ्रेंस थी. और मैं घर आया, मैं अपने प्रार्थना के कमरे में गया और मैं परमेश्वर कहता, प्रभु थैंक यू मुझे वहां ले जाने के लिए, बहुत मजा आया. क्या कॉन्फ्रेंस थी. और पिता ने मुझसे बोला, मेरे बेटे जो तुझे वहां मिला मैं उससे बढ़कर तेरे को हर रोज कमरे में दे सकता हूं. इसका मतलब ये नहीं कि हम जाएंगे नहीं मीटिंग में, पावरफुल है जहां हम सीखते हैं, परमेश्वर काम करते हैं. बट मैंने कहा कि अगर केवल कॉन्फ्रेंस से और केवल संडे को आकर अगर खाना खाते हो, अगर संडे को आके एक बार ही खाना खाओगे और फिर हफ्ते अगले संडे आओगे तो ऐसे आओगे. If you only eat on Sundays and then next Sunday you come for food and don't eat during the week, you'll be. यहां पे संडे को हम लंगर, खाना अलग है, मैं आपको आत्मिक बात बता रहा हूं. हम आपको खाना नहीं बांटना चाहते, हम आपको खाना बनाना सिखाना चाहते हैं कि खुद घर पे खाना बनाओ हर रोज, सोमवार, हाँ क्या, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, कि ताकि जब यहाँ पे आओ तो हिस्ट पुष्ट होके आओ, एकदम हट्टे कट्टे. We don't just want to serve you spiritual food when you come on Sunday. We want to give you how to make that food for yourself every day of the week. So when you come here, you're strong. Amen. So that you learn ताकि आप to hear सीखो your father. अपने पिता को सुनना. You learn आप सीखो to stand on God's promise for yourself. परमेश्वर के वायदों पे खड़े रहना अपने जीवन के लिए. इसीलिए कई बहुत ऑफ हो गए हैं अब. ये घोषणा सिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी हमारे पास आता ही नहीं है कोई. ये खुद ही चंगे हो जाते हैं, खुद ही घोषणा करके चंगे हो जाते हैं. Many people are off that. Nobody is coming to us because people are declaring their own for themselves and they are getting healed. हाँ, इससे बढ़िया बात क्या है. What's better? अरे जब मसीह की देह खुद हीलिंग में चलेगी, जब खुद हेल्थ में चलेगी, तभी तो हम बाहर चमकेंगे दुनिया में. When the body of Christ will walk in health, that's when we will shine for the people outside. सो खुद वचन पे खड़ा होना सीखना है. सोचो कलीसिया कहाँ होगी अगर जो आम तौर पे कलीसिया में बोला जाता है, प्रे फॉर मी, इट विल चेंज टू टीच मी द वर्ड. Imagine where the church will be when people normally say मेरे लिए प्रार्थना करो, उसकी जगह लोग ये कहने लगे कि मुझे वचन सिखाओ. हाँ, कई बार तो कोई टॉपिक नहीं है ना, तब भी प्रार्थना करानी है. प्रार्थना कर दो. अब क्या अब बच्चा बहुत चंचल है हमारा, प्रार्थना कर दो. मैं देख रहा हूँ बच्चे को, मैंने मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है. नहीं थोड़ा चंचल है, थोड़ा भागता है. मैंने कहा तो क्या बांध दोगे पाँव उसके? बच्चा है भाई, बच्चा चंचल नहीं होगा तो कौन चंचल होगा? A kid will be kiddish and people want that to stop. कुछ कहते हैं नहीं प्रार्थना कर दो. क्या प्रार्थना Say करें? pray. जो आपका मन करे. Whatever you want to pray. तो मेरा मन करता है प्रभु ऐसे लोगों को ना लाया कर. Oh, I feel like Lord, don't bring such people. हालेलुया. क्या जमात खुश है आज? I love you too. Thank you so much. Amen. आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? तभी वो परिवार स्वस्थ है जहां पे हर एक विश्वासी स्वयं पिता से लेना जानता है, प्रतिज्ञाओं में खड़ा है, विश्वास में बलवंत है. Only then the family is healthy when each member of this family knows how to stand in समझो कि faith. परमेश्वर ने जिन दासों का अभिषेक किया है, उनका काम वो बैसाखी नहीं है, वो कोच हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप परमेश्वर के राज्य में जैवन जीवन जी सकते हो. The people that God has anointed are not to make you handicapped or dependent on themselves. God has anointed them to coach you how you can stand for yourself. फाइव-फोल्ड जो मिनिस्ट्री है वो क्यों है? बाइबल जल्दी से लगाओ, ये टॉपिक नहीं है पर जल्दी से लगा दो. Ephesians 4:11. Now Jesus, he chose some to be apostles, prophets, teachers, evangelists, pastors to equip the saints. क्या करने के लिए? और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने नियुक्त करके, और कितनों रखवाले उपदेश 12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए. ये सिद्ध का मतलब मैच्योर हो जाए, परिपक्व हो जाए. हाँ, This perfect is that they'll be matured. अगर हर बार आपकी जरूरत है और आप जाए हमारे सर पे हाथ रख दो, कभी सिद्ध हो गए आप? कभी नहीं होगे. If whenever you have a need, you say lay hands on my head, you will never mature. That has a place, as I said. मैंने कहा था उसकी जगह है अपनी एक.
परमेश्वर का दास आपका उत्तर नहीं है, A man of God is not your परमेश्वर answer. का वचन आपका उत्तर है। The word of God is your answer. परमेश्वर ने अपने दासों को रखा है कि वो उसकी देह को वचन की तरफ ले जाएं। God has kept his servants so that they can take the body of Christ towards the word of God. पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। एडिफाइंग ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आगे 13, जब तक हम सब के सब, बोलो सब के सब, क्यों रखी है फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री? कि सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। Why has God kept these fivefold ministries? So that till all come to the unity of faith and the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. We all grow to the fullness of Christ. That means God desires a mature church. मतलब परमेश्वर की चाहत है एक परिपक्व कलीसिया। हाँ, रेस्टोरेंट वाले आपको कभी रेसिपी नहीं देंगे क्योंकि वो चाहते हैं बार बार आप उनके पास आओ खाने के लिए। The restaurant owners will never teach you the recipe. They will not give you the recipe. They want you to come back to them for eating. पर घर में होना तो घर वाले सिखाएंगे। But if you're in the house, your family will teach you how to cook. हाँ, डोमिनोज कभी नहीं बताएगा अपनी रेसिपी, Domino's will never give you the क्योंकि recipe कोई आएगा ही नहीं डोमिनोज पे, घर में बनाएंगे because डोमिनोज। then nobody will come to them. People will make things at their home. हाँ, सोचो कोच का जो काम है, Imagine the work of a coach. वो काम है खिलाड़ियों को सिखाना कि जब खेल होगा तो खिलाड़ी खेलेंगे, कोच नहीं खेलेगा। The role of a coach is to teach the players that when the game happens, the players will play, not the coach. पहले मुझे फोन आता था, I used to get phone calls पास्टर earlier. जी हमारे यहाँ एक दुष्ट आत्मा खेल रही है, प्रार्थना दो। मैंने खुद कर प्रार्थना, Pastor, there's a demonic तेरे spirit पास भी वही manifesting. अधिकार है जो यीशु ने मुझे दिया है। Yeah. I would tell them to pray. You pray for the demons because Jesus has given you the same authority over those demons. अब फोन आने बंद हो गए I stopped getting those calls क्योंकि नंबर ही नहीं है किसी के पास। because nobody has a number. आमेन। कोई भी माँ के पेट से दुष्ट आत्मा निकालते हुए नहीं आया, सबने सीखा है यहाँ पे। अगर सीखा है तो आप सब सीख सकते हो। Nobody was born casting out demons. Everybody learned, and if others learned, you can also learn. अगर कभी नहीं करोगे तो सीखोगे भी नहीं। यीशु ने कहा विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। If you will never do it, you will never learn. Jesus said, तो अगर विश्वासी हो यहाँ पर तो हर एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। Jesus said, these signs will follow those who believe. They will cast out demons in my name. If you're a believer, you can cast out demons. आमेन। अब सोचो कोच सिखा रहा है और फिर खेलो, फिर कोच कहे अरे रहने दे, तेरे से नहीं होगा, मैं ही खेलता हूँ। Now imagine the coach teaches first, and then when the game starts, the coach says, "You can't play. Let me go and play." क्यों कलीसिया मिलकर हम आते हैं? संडे को आप यहाँ हैं, आप मंडे को कई लोग कॉलेज जा रहे हैं, कई लोग ऑफिस जा रहे हैं, कई लोग वहां। अब आप मसीह के बारे में आप एक गवाह बन जाओगे। आप यू विल डू द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री, सेवा का काम आप करोगे। यहां पर आपको सिखाया जाएगा, मंडे से सैटरडे आप परमेश्वर का काम करोगे, सेवकाई का काम करोगे। फिर वो ऐसा है जैसे कारें आती हैं, दोबारा रिफिल होती हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता है 500 किलोमीटर और फिर 500 किलोमीटर जाते हो, फिर वापस आते हो, फिर संडे को चार्ज लेकर जाते हो। सोचो कितनी बड़ी बेदारी इस देश में आएगी अगर हर एक विश्वासी सेवकाई का काम करने लग जाए। We all come here on a Sunday so that we can receive that charge like a car, get the charge and go out from Monday to Saturday. The church, the believers will do the work of ministry. Imagine the kind of revival that will come to this nation if every believer starts to do the work of the ministry. आमेन। और तभी होगा जब देह खुद खड़ी होगी। आप सोचो अगर एक माता पिता है जिनका बच्चा वो हमेशा उसको गोद में लेके रखते हैं, वो कभी उसको उन्होंने कहा नहीं हमारा बच्चा Imagine हम गोद में ही लेके चलेंगे। वो 10 साल का हो गया, अब वो अपाहिज हो चुका है, चल नहीं पाएगा, टांगे कमजोर हो गई। क्यों? क्योंकि माता पिता ने कभी उसे खुद चलने नहीं दिया। जब तक आप खुद मसीह के वचनों में चलोगे नहीं, खड़े नहीं होगे, विश्वास में बढ़ भी नहीं पाओगे। Imagine parents who never allowed their kid to walk, always carried him in their lap. Now he's 10 years old, his legs are weak, cannot walk, he's handicapped because his parents never allowed him to walk. If you don't walk on the word, you will never be strong. आमेन। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में, परमेश्वर का वचन आपके मुंह में, वो दो धारी तलवार की तरह है। The word of God in your heart, the word of God in your mouth is like a two-edged sword. God desires a mature bride. परमेश्वर चाहत रखता है एक परिपक्व दुल्हन की। Faith is like a muscle, understand this. विश्वास एक मांसपेशी मसल की तरह The है। more you use it, the more it grows. जितना इस्तेमाल करोगे उतना बढ़ेगा। अगर दूसरा बंदे के विश्वास में जिंदगी जियोगे हमेशा तो फेथ मसल हो जाएगी आपकी, कमजोर, कुछ नहीं कर पाओगे उसके बाद। If you will live depending on the faith of another person, your faith muscle will be So, weak. अगर चाहते भी हो कि कोई आपके लिए प्रार्थना करे तो ये मत बोलो प्रे फॉर मी, मैं चिप्स खाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, तुम मेरे घुटने टेको। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है मसीह की देह में। Even if you want prayer, don't say you pray for me and I'll go enjoy my life. No, that's wrong. Your role should be agree with me. आपका काम Stand होना with me as I am praying. I need somebody to stand with me. Together we'll agree on this promise. एक किसी को ढूंढो और बोलो मेरे साथ एग्रीमेंट में आओ। I am praying. I need somebody who can agree with me for this. आपका काम होना चाहिए मेरे साथ सहमत हो जाओ, मैं इस विषय में, इस वादे पे, इस बारे में प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे साथ सहमत हो जाओ कि हम दो जन मिलकर इस बारे में खड़े हों।
Amen. विश्वास को इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा.